channel with another sample question paper 4। ये फोर्थ क्वेश्चन पेपर है जो आपको दिखाया जा रहा है। इसमें आपको 2 सेक्शंस बताए जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने पीडीएफ की डिमांड की थी, बट इसमें मैं आपको केवल 2 सेक्शंस ही एनालाइज करूँगी और उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। हमें लगता है आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। रिमेंबर, एक बात आप अच्छी तरह से ध्यान से समझ लें कि ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसका पैटर्न दिखाया गया है। ये सेम क्वेश्चन आपको नहीं एग्जाम्स में मिलने वाले हैं, इसलिए इनका पैटर्न आप समझने की कोशिश कीजिए और किस तरह से इसे सॉल्व करना है इस पर ध्यान दीजिए। और अपकमिंग वीडियोस में ये जो फर्स्ट सेक्शन रीडिंग स्किल्स का है, जिसमें कि अनसीन पैसेजेस दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, उनको किस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं 100% मार्क्स अचीव करने के लिए, ये आपको अपकमिंग वीडियो में मैं बताऊंगी ईजीली। फिलहाल शुरू करते हैं। सेक्शन ए रीडिंग स्किल का है। रीडिंग स्किल्स में आप देखेंगे रीड द पैसेज गिवन बिलो। इसमें 2 पैसेज आपको हमेशा दिए जाएंगे जिसके 7, 6 या 5 पैराग्राफ्स होते हैं। उनको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। उसमें सही ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा या करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस जो आएंगे वो इसमें से ही आएंगे, लेकिन उनको आपको एज इट इज़ नहीं लिखना है, उन्हें आपको अपने शब्दों में बनाकर अपने वर्ड्स में लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। रीड द पैसेज गिवन बिलो, दैट इज हियर। So, a youngster quit Facebook in December after spending over 3 years on the social networking site. With that one act, he bid a silent adieu to more than 300 contacts that he had added to his account during the period. Like almost everyone from his friend circle, the 20 years old was a regular on the service, visiting it every day to post photos and status updates. But last week, a new feature on Facebook called Timeline forced him to reconsider the pros and cons of being on the networking site. Second, everyone has some skeletons in their closet, and I am just not comfortable with Facebook digging up and displaying all the facts of my life on a bulletin board, says this youngster who joined the network in July 2007 while he was in class 11th. Facebook, you see, had compressed the time he spent on the site and arranged it in chronological order, while he initially liked the new neatly organized scrapbook like feature. He was not happy to reveal posts from the past that until recently were hidden under layers and layers of recent updates. Just clicking on a date on the timeline could transport his friends back in time and enable them to review every embarrassing comment, like, or photo he had posted on his profile. I think it's a recipe for disaster, he says. In 2007, I had some wall posts which seemed appropriate at the time, but now, after a lapse of 4 years, I have moved on and don't want them to be openly displayed for all to see. He is not alone. Many users, worried about how to Facebook activity could possibly affect their offline lives, are choosing to commit Facebook suicide. While some have privacy concern, others feel the site meant to bring them closer to their friends actually does the opposite. It reduces their friendship to something superficial. Poking and liking are not enough to keep a friendship going, says a business analytic. Having quit Facebook 3 years ago, she prefers meeting her real friends face to face instead of reading their trite posts online. On Facebook, people hype every day issues, including what they ate and where they went on a daily basis, says his analyst, who continues to use Twitter. Facebook has become a time sink and it could not justify the time I spent on it, he says. I spent more time calling up friends or relatives over the phone. Now I also go out and meet people whenever possible and have a good offline life. I do not regret the change. Today, Facebook has 800 million users, of which 37 million are Indians. The site has become an online identity for most, and many of those who decided to quit cannot overcome the withdrawal symptoms and return. Facebook, fully aware of its addictive powers, facilitates this return by allowing users to deactivate their accounts but continues to store information on its servers so that they can return from their break whenever they wish. ये 7 पैराग्राफ्स आपको बताए गए हैं जिसमें अब क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ये बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आई होप इससे आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी हद तक आपको
मेथड और क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा। वाई डज द राइटर से फेसबुक इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर? ऐसा क्यों कहा है फेसबुक रेसिपी है डिजास्टर की? ये राइटर ने क्यों बोला है? तो इसमें आपके चार ऑप्शन हैं। इट प्लेस द डिलीटेड मैटर, इट मेक्स एवरी पोस्ट पब्लिक, इट डिस्प्लेज द पास्ट दैट वॉज रिलेवेंट देन बट नाउ नॉट नाउ, दे यूज द डाटा फॉर फर्दर एडवर्टाइजमेंट। इसमें से जो सी है वो आंसर करेक्ट है, वो सी आंसर है। इट डिस्प्लेज द पास्ट दैट वॉज रिलेवेंट देन बट नॉट नाउ। सेकेंड है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो, पोकिंग एंड लिकिंग आर नॉट एनफ टू कीप अ फ्रेंडशिप गोइंग। इसके भी चार ऑप्शन है। सिंगिंग एंड डांसिंग आर सम फन एक्टिविटीज टू एंगेज इन, taking supplements and a balanced diet is not enough for healthy living, doing projects and assignments will make you better students, hard work and luck are recipe to success। इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है? कैन यू टेल मी? कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। अगर नहीं तो इसमें बी ऑप्शन सही है, टेकिंग सप्लीमेंट्स एंड बैलेंस डाइट इज नॉट एनफ फॉर हेल्दी लिविंग। थर्ड है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट depicts what the writer projects with reference to following. Everyone has some skeletons in their closet, and I am just not comfortable with Facebook digging up and displaying all the facts of my life on a bulletin board। इसमें ये पूछा गया है कि राइटर ने जो एक फ्रेज़ है ये एवरीवन हैज़ सम स्केलेटन्स इन देयर क्लोजेट, ये एक तरह का मुहावरा है, एक फ्रेज़ है। इसका यूज़ क्यों किया गया है और क्या चीज़ डिस्प्ले करने के लिए, क्या चीज़ बताने के लिए राइटर ने इस फ्रेज़ का यूज़ किया है? इनमें से चार ऑप्शन हैं, डेंजर, डिसडेनफुल, कॉशन एंड एक्सिलरेशन। अब विदाउट एनी चीटिंग आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपके हिसाब से क्या ऑप्शन इसका सही है, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। कैन टेल मी? चलिए इसको भी बताते हैं। और इसके अलावा कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 3। इसमें फर्स्ट पार्ट को छोड़ दिया गया है, ओपिनियन इसमें बताई गई है, आपको एक फ्रेज इसमें लिखना है। इसमें एक फ्रेज आपको बताना है। इसमें एक फ्रेज आपको बताना है कि कौन सा, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 3। और इसका रीज़न बताया गया है कि ये many users worried about how their activities on Facebook could affect their personal lives। इसमें आपको अपनी ओपिनियन बतानी है या कोई फ्रेज जो यूज़ किया गया है। Now in paragraph 7 the author says allowing users to deactivate their accounts but continues to store information on their servers so that they can return from their break whenever they wish. State the reason for doing so by Facebook। Next question है, based on your reading of the text, list any two disadvantages or implications of the social media site Facebook। उसके बाद है according to the author what feature of timeline takes away a person's privacy। इसमें आपको बताना है कि कौन सा फीचर टाइमलाइन का है जो किसी भी इंसान की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, द ऑथर से द साइट हैज़ बिकम एन ऑनलाइन आइडेंटिटी फॉर मोस्ट एंड मेनी ऑफ दोज हु डिसाइडेड टू क्विट कैन नॉट ओवरकम द विथड्रॉल सिम्टम्स एंड रिटर्न। What according to the author is an advantage as well as a disadvantage in Facebook। इसके भी चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। Why did the youngster change his mind later regarding staying on Facebook? इसको आपको अपने शब्दों में आंसर बताना है।
नेक्स्ट है evaluate the appropriate characteristics that can be apt for the lives of people who had quit Facebook. Social and real, sad and hysterical, embarrassing and addictive, nostalgic and fear of missing out. इसके बाद ये सेकेंड पैराग्राफ है जिसको, ये भी अनसीन पैसेज ही है, इसको भी आपको रीड करना है और इससे रिलेटेड आपको आंसर देने क्वेश्चन के, लेकिन इसे मैं नहीं ले रही हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अब आते हैं सेक्शन बी पर। ये सेक्शन बी जो है ये कंप्लीट ग्रामर पर बेस्ड है। इसमें क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस आपको टेस्ट किया जाएगा कि सारी चीज़ें, सारे टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपको आते हैं या नहीं आते हैं। बस उन्होंने क्वेश्चन को देने का तरीका बदल दिया है थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये है अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें 12 क्वेश्चंस हैं और 1 मार्क का, ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क, लेकिन आपको केवल 10 क्वेश्चंस ही करने हैं। यानी ग्रामर सेक्शन आपका जो है वो 10 नंबर का है, जो 12 क्वेश्चंस में से आपको 2 छोड़ने हैं और 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस में से फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक by choosing the correct option to complete the statement below. इसमें है each one of the managers dash for leave today is protest against the management. इसके 4 ऑप्शंस हैं, has applied, have applied, applied और will apply। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? चलिए कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके बताइए पहले, फिर इसका करेक्ट ऑप्शन हम आपको बताते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है हैज़ अप्लाइड, क्योंकि यहाँ पर ईच वन ऑफ द मैनेजर लिखा है, यानी ईच वन की बात की गई है। ये फर्स्ट आंसर ए जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है द रीड द कन्वर्सेशन बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द सेम। आनंद सेड टू रेनू, आई डोंट नो what Gayatri is doing these days. She has not visited us for ages. ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है, जिसमें इन्होंने आधा चेंज किया हुआ है और आधे को आपको चेंज करना है। जैसे आनंद टोल्ड रेनू, इसमें ये है सेकंड, जिसमें आनंद टोल्ड रेनू दैट ही डिड नॉट नो what Gayatri was doing those days as, और इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है। She had not visited them for ages, she has not visited them for ages, she would have visited us, she should have visited us। इसमें से ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, she had not visited them for ages। थर्ड है select the correct option to fill in the blank for giving line। We dash only people that everything turns out well। इस डैश में क्या भरना है? fill in the blank है must, could, can, need। इसका सी आंसर can सही है। We can only hope that everything turns out well। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे आप अच्छी तरीके से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। माई अंकल एंड गार्जियन वॉन्ट मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। इसमें 4 ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं। ए है गार्जियन, माई गार्जियन। सेकेंड है बी वॉन्ट या वॉन्ट्स। वॉन्ट और वॉन्ट्स ये एरर एक तरफ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ करेक्शन है कि उसकी जगह पर क्या वर्ड होना चाहिए। तो वॉन्ट है, वॉन्ट्स है। थर्ड है स्टार्ट और ये
एरर है अगर, तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, स्टार्टेड होना चाहिए। सेकंड, थर्ड और फोर्थ है बिजनेस, ए बिजनेस। इसमें चारों में से आपको कुछ नहीं करना है, चारों में करेक्शन नहीं करना है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो सही है उसको लिखना है। जैसे इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, कैन यू टेल मी? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन which answer is correct. Can you tell me? My uncle and guardian want me to start my own business में से जो बी ऑप्शन है want, इसकी जगह पर wants होगा। My uncle and guardian wants me to start my own business. Next है complete the given narrative by filling in the blank with the correct option. When I reached the station, I did not stop at the ticket office but dash, यानी fill in the blank, straight to the platform. इसमें 4 ऑप्शंस हैं, डैश्ड, डैश, डिड डैश या डैशिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखें तो ये बेस्ट होगा, अदरवाइज आई डैश्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of the letter. इसमें आपको एक लेटर का एक पार्ट दिया गया है और उसमें से करेक्ट क्या चीज़ भरी जाएगी वो बताना है। जैसे ये है, fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of the letter. Subject है complaint against open potholes, dear sir, with extreme trouble and pain, I fill in the blank beg to draw your attention through this letter. अब ये I beg जो है इसमें क्या फॉर्म beg की भरी जाएगी? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है beg ही भरा जाएगा इसमें, I beg. Report the dialogue between the policeman and stranger by completing the sentence. अब ये एक पुलिसमैन और एक स्ट्रेंजर, अजनबी के बीच में बात की जा रही है। ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म लिखनी है। पुलिसमैन, हु आर यू, वेयर डू यू कम फ्रॉम? स्ट्रेंजर बोलता है आई एम अ कॉमन मैन लॉस्ट इन द क्राउड। तो इसका इन रिस्पॉन्स टू द क्वेरी अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज whereabouts, the stranger replied to the policeman that, अब इसमें क्या भरना है? इसमें भरना है that he was a common man who was lost in the crowds. ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। Identity the error in the given sentences and supply the correction. The researchers stressed that the need of the hour is to increasing awareness among people to reduce ecological pollution. Use the given format for your response. इसमें वो ही सेम चीज़ है जो आपको ऊपर यहाँ पर बताई गई थी, इसमें वो ही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी बतानी है। इसमें क्या है, आपको एरर लिखना है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड में उसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा वो लिखना है। तो इसमें एरर ये है, इंक्रीजिंग, जो आपका द रिसर्चर्स स्ट्रेस दैट द नीड ऑफ द आवर इज टू इंक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग नहीं होगा, यहाँ पर आप एरर सेक्शन में इंक्रीजिंग लिखेंगे और इसका करेक्ट होगा इंक्रीज, केवल इंक्रीज लिखेंगे, यही इसका आंसर होगा। तो द रिसर्चर्स स्ट्रेस दैट द need of the hour is to increase awareness among people to reduce ecological pollution. Next है Sunidhi shared some information with Amit about the exam the next day. Report Sunidhi's question. Sunidhi said, do you know when the final term exam begins? To fill in the blanks by choosing the correct option to complete the given statement. Many dash admit doing so. For those who do, there was no need for guilt.
will not, may not, should not, shall not. इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा should not. Many should not admit doing so. For those who do, there was no need for guilt. Select the correct option to complete the narration of the dialogue. Manu, where are you going? Anu, I am going to the market. Do you want anything? Manu asked Anu where she was going. ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही है, मतलब ये आप देख लें कि मैक्सिमम पोर्शन इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर ही है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी और इसके लिए मैं पहले भी आपसे बोल चुकी हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप इस पर एक नया वीडियो बना दिया जाएगा, कंप्लीट वीडियो केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर ही। तो मनु आस्क्ड अनु वेयर शी वॉज गोइंग, तो अनु रिप्लाइड, अनु ने क्या जवाब दिया? एंड फर्दर आस्क्ड, अनु ने क्या जवाब दिया? मनु वेदर शी वॉन्टेड एनीथिंग, क्या पूछा गया था? शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। आंसर है मनु आस्क्ड अनु वेयर शी वॉज गोइंग, अनु रिप्लाइड शी वॉज गोइंग टू द मार्केट एंड फर्दर आस्क्ड, और आगे उससे पूछती है कि मनु क्या कहती है? वेदर शी वॉन्टेड एनीथिंग, कि क्या उसे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई आवश्यकता है। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन ही आपको लिखना था। दैट शी विल बी गोइंग टू द मार्केट, दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, शी विल गो टू द मार्केट, शी विल बी गॉन बाई देन टू द मार्केट। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर ऑन अ रेस्टोरेंट्स पोस्टर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग। फूडी कॉर्नर रेस्टोरेंट है और गुड थिंग हैव द वे ऑफ कमिंग टुगेदर। इसमें से क्या चीज़ आपको गलत दिखाई दे रही है? इसमें ये है नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें से क्या चीज़ आपको गलत दिख रही है उसको करेक्ट करके आपको लिखना है। आगे ये जो सेक्शन दिया गया है इसमें आपको लिखना है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो इसमें गलत ये है कि जो गुड थिंग लिखा है ये थिंग नहीं होगा, थिंग्स होगा। द गुड थिंग्स हैव द वे ऑफ कमिंग टुगेदर। सो फ्रेंड्स, ये सेक्शन ए और बी को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इससे आगे करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एक पोर्शन जो इसका रह गया है वो लेंगे, और सेक्शन सी जो लिटरेचर में इटसेल्फ कंप्लीट है, काफ़ी बड़ा सेक्शन है, इसको लेंगे। सो आई होप वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसे लाइक कर देना फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। अदरवाइज़ आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए होगा, तो उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। सो आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। बाकी कहीं पर कोई भी PDF वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और फिलहाल के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।